ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ VRTC 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਟਾਈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ 'ਚ ਅਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਰਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਲ ਇਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲਗਵਾਈਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਈ ਪਾਰਕਸ ਡਿਸੇਬਲ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਈਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਡਿਸੇਬਲ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਈਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਮੈਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸੇਬਲ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ? ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਜੌਬ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਹਰਸੈਲਫ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਡ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ टाइम जो लोड होगी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ हेल्प करेंगे। आपने इस स्कूल की स्टार्टिंग, जैसे आपने बताया कि आपके हस्बैंड थे, तब जब इतना बड़ा सपना होता है एक कि आपने किसी और को एक नई ज़िंदगी देनी है, तब काफ़ी अड़चनें आती हैं, रुकावटें आती हैं, तो उनको भी पार करना होता है। तब जब स्टार्टिंग की थी उस समय कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? और मेरा पास 2 रुपया भी नहीं है, वो दिन भी मैंने ज़िंदगी में देखा। मेरा हस्बैंड इतना बड़ा फैमिली का लड़का है लेकिन 2 रुपया नहीं मेरा पास आटा लेने के लिए मेरे छोटी बेटी के रखकर मैंने बहुत तकलीफ उठाया। हमारा पास मोर देन 20,000 लोगों का ब्लाइंड हैंडीकैप उन लोगों का ट्रेनिंग देकर एजुकेशन देने के बाद कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चों का कॉलेज में एडमिशन देकर वोकेशनल ट्रेनिंग देकर उनका एम्प्लॉयमेंट हमने लेकर दे दिया। सबसे ज़्यादा बादल साहब ने हमें बहुत हेल्प कर दिया, बच्चों का एम्प्लॉयमेंट दे दिया। अभी रिसेंटली उनका पीरियड ख़त्म होने के पहले भी मैं जाकर मिला। मैंने बोला सर बाद में कौन आएंगे क्या हमें कुछ नहीं पता, आप बोलते होते हमें कुछ कर जाओ ब्लाइंड के लिए। और सब म्यूनसिपल कमेटी में कितना भी पोस्ट हैं, चौकीदार पोस्ट हैं, हेल्पर पोस्ट हैं, सारे 200 के ऊपर बच्चों का उन्होंने नौकरी दे दिया। खुशी होती है जब जैसे अभी एक्टिव ह्यूमन एनजीओ की तरफ से आपको सपोर्ट की गई है, तब खुशी होती है जब एनजीओस आगे आते हैं, उनकी तरफ से सपोर्ट की जाती है? हम लोग बहुत खुश हैं। ਤਾਂ BRTC ਆਫ ਬਲਾਈਂਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਹਿਊਮਨ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੈਕਟਾਈਲਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾਈ ਗਿਆ। ਟੈਕਟਾਈਲਸ ਲਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਲਾਈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸਟਿੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿੱਕ ਨਾ ਚੱਕਣੀ ਪਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਹਿਊਮਨ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਮ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨੇ। ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਏਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ VRTC 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਟਾਈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ 'ਚ ਅਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਰਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਲ ਇਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲਗਵਾਈਆਂ ਅੱਜ ਤੇ। ਮੈਮ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲਾ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਟਿੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਈ ਪਾਰਕਸ ਡਿਸੇਬਲ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਈਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਡਿਸੇਬਲ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਈਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਦੇ ਮੈਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸੇਬਲ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਮ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪੈ ਜੂਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਰਫੇਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਮ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਏਬਲ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਮ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੈਮ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਜੌਨਸਨ ਮੈਮ ਨਾਲ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਜੌਬ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਹਰਸੈਲਫ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਡ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਏਬਲ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2% ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਤਾਂ ਇਸ मौके ਸਾਡੇ ਨਾਲ स्कूल ਦੇ चेयरपर्सन मैम ने जो ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करेंगे। मैम, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और आप कब से यहाँ पे ये सेवा निभा रहे हो जी? मेरा नाम है सारा मिसेस सारा जॉनसन, वाइफ ऑफ लेट डॉक्टर E.M. जॉनसन। मैं 1967 में मैरिज होने के बाद इसी काम में मैं भी साथ में मेरा हस्बैंड का साथ काम कर रहा CMC में। उसके बाद प्रोजेक्ट है 1965 में ये वॉर डिसेबल्ड के लिए, इंडो चाइना वॉर डिसेबल्ड के लिए प्रोजेक्ट शुरू करा CMC हॉस्पिटल में। जी 1971 में जून में प्रोजेक्ट ख़त्म हो गई। उसके बाद CMC डायरेक्टर मेरा हस्बैंड का बलूर CMC भेजा। वो लेप्रोसी पेशेंट हैं, उनका कुछ दिल में दुख हो गई क्योंकि ऑलरेडी आंख खराब हो गया, अभी मैं लेप्रोसी के साथ कैसे करूँ, ऐसे कर उतना में डॉक्टर विक्टर श्रीरामबो अमेरिका से एक टेलीग्राम भेजा। उसमें मेंशन करा, भगवान ने आपका आंख खराब कर दिया, पंजाब में लोगों की सेवा करने के लिए आप में आ रहे हैं, आप भी एकदम लुधियाना पहुंचो। जी हमें उसी टाइम पता नहीं कहाँ जाकर स्टे करें, हमारा कोई घर नहीं है। वो एक उनका ओल्ड स्टूडेंट है प्रोफेसर कृपाल सिंह, ही इज़ नो मोर नाउ। जी 95 ईयर्स में वो उनका डेथ हो गए, पटियाला में थे। उनका फ्रेंड का पास बताकर जमला जट उनका घर हमें फ्री ऑफ कास्ट हमें रहने के लिए दिया। उसके बाद हमने 45 रुपीज़ का एक छोटा सा कमरा लेकर ये काम हमें शुरू करा। उन दिनों में मिस्टर ब्रिजमोहन लाल मुंजाल हीरो साइकिल, मिस्टर IMS ग्रेवाल अपर इंडिया स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जी और मिस्टर सोहनलाल बाबा A1 साइकिल, इन लोगों ने हमें बहुत हेल्प करा। अगर उन लोगों ने उन दिनों में हमें हेल्प नहीं करा, हम आज इसी पोजीशन में नहीं आ सकती है। जी उन लोग अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उन लोगों को याद करती। जी मैम, जब आपने इस स्कूल की स्टार्टिंग की, जैसे आपने बताया कि आपके हस्बैंड थे, तब जब इतना बड़ा सपना होता है एक कि आपने किसी और को एक नई ज़िंदगी देनी है, तब काफ़ी अड़चनें आती हैं, रुकावटें आती हैं, तो उनको भी पार करना होता है। तब जब स्टार्टिंग की थी उस समय कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उसके बाद क्या इजी हुआ कुछ? अगर मैं सच बताएंगे, एक दिन मेरे पास 2 रुपया भी नहीं है, वो दिन भी मैंने ज़िंदगी में देखा। जी मेरा हस्बैंड इतना बड़ा फैमिली का लड़का है, लेकिन 2 रुपया नहीं मेरे पास आटा लेने के लिए। मेरे छोटी बेटी के रखकर मैंने बहुत तकलीफ़ उठाया। जी सामने वाला एक सरदार जी का घर से मैंने आटा लेकर आकर मेरा बच्चे का, मेरा हस्बैंड का हमने देकर उस दिन हमने टाइम पास कर दिया। लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर दिया दुनिया में, जी लेकिन लोग हमें बहुत हेल्प कर दिया। वाइस चांसलर PAU का डॉक्टर रंधावा, उनका पास प्रोफेसर कृपाल सिंह ने कुछ बुक लिखा है। वो CMC हॉस्पिटल में वार्ड नंबर 10 आई डिपार्टमेंट का है। उसका एक हिस्ट्री उन्होंने पूरा लिखा मेरा हस्बैंड के बारे में। वो बुक हमने PAU में अभी भी हो जाएगा। वो बुक बेचकर 5 रुपया का बेचकर पैसा हमने कुछ कमाया। वो पैसा लेकर
हॉस्टल में इतना भी बच्चे उसी टाइम में लड़की लोग नहीं हैं, सिर्फ जेंट्स हैं, लड़का लोग हैं, उनके लिए हमें रोटी खाने के लिए हमने बंदोबस्त करा। बहुत स्ट्रगल कर कर हमने ये काम शुरू कर दिया। बाद में कुछ भी पैसा मेरा हस्बैंड जमा कर कर रखा 5 साल में, वो पैसा लेकर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से ये जगह हमने खरीदा। उन्होंने अपना नाम पर नहीं ले लिया, इंस्टीट्यूशन का नाम वोकेशनल रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर नाम पर उन्होंने ले लिया। लेकिन उसमें एक लाइन ज़रूर लिखा है, वो मेरे को भी मालूम नहीं है, ये किसी के भेजने के लिए अधिकार नहीं है। हमारा पास मोर देन 20,000 लोगों का ब्लाइंड हैंडीकैप उन लोगों का ट्रेनिंग देकर, एजुकेशन देने के बाद कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चों का कॉलेज में एडमिशन देकर वोकेशनल ट्रेनिंग देकर उनका एम्प्लॉयमेंट हमने लेकर दे दिया। अभी भी पंजाब गवर्नमेंट में सेक्रेटरीट में एक टोटली ब्लाइंड लड़का सुपरिटेंडेंट पोस्ट में है। सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक में हमारा ब्लाइंड बच्चों का सर्विस में ले लिया। अभी भी काफ़ी लोग पंजाब नेशनल बैंक में ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक लड़का का हमने दिल्ली भेजा है शॉर्ट एंड कोर्स के लिए, वो अभी उसका काम मिल गए बेंगलुरु में इनकम टैक्स ऑफिस में। उसमें सारे बच्चों को बताया था, लेकिन उसने बोला आंटी को मत बताना। एक दिन फर्स्ट सैलरी लेकर बेंगलुरु से वो लड़का वापस आकर मेरे पास मिठाई के डब्बा से आ गए। मैंने बोला क्या हो गया भाई? आंटी जी मेरे को नौकरी मिला। कहाँ? तुम बताया नहीं है। साथ वाला लड़का बोला कॉलेज में, आर्य कॉलेज में पढ़ रहे। उसने बोला आंटी उसने मना करा किसी का नहीं बताना। सरप्राइज ही आपको उसने? सरप्राइज, मेरे को सरप्राइज करना। तब मैम कितनी खुशी हुई जब ऐसे स्टूडेंट आपके पास आते हैं और हेल्प करते हैं? डिपार्टमेंट में काम मिलना बहुत मुश्किल है। एक गुरप्रीत सिंह है होशियारपुर में, उसका बहन भी ब्लाइंड है। दोनों बच्चे हमारे से कर कर कॉलेज कर कर उसका स्कूल में जॉब मिल गई। एक दिन शाम को 4:30 बजे मेरे को फ़ोन आया था गुरप्रीत सिंह से। मैंने बोला बेटे अभी शाम को मेरे को याद कर दिया, क्या बात है? आंटी मेरे को प्रिंसिपल पोस्ट मिल गई, अभी ऑर्डर लेकर बाहर आ गए, सबसे पहले आपका कॉल कर रहे हैं। आप देख लो मन में कितना खुश है। और कितना हमारा लोग सब गवर्नमेंट में काम मिल गई। सबसे ज़्यादा बादल साहब ने हमें बहुत हेल्प कर दिया, बच्चों का एम्प्लॉयमेंट दे दिया। अभी रिसेंटली उनका पीरियड ख़त्म होने के पहले भी मैं जाकर मिला। मैंने बोला सर बाद में कौन आएंगे क्या, हमें कुछ नहीं पता, आप बोलते होते हमें कुछ कर कर जाओ ब्लाइंड के लिए। और सब म्यूनसिपल कमेटी में कितना भी पोस्ट हैं, चौकीदार पोस्ट हैं, हेल्पर पोस्ट हैं, सारे 200 के ऊपर बच्चों का उन्होंने नौकरी दे दिया। अभी हमारा बच्चे कोई भी ऐसे नहीं है बिना काम के लिए, सब एम्प्लॉयमेंट में है। लेकिन आज तक हमने किसी बच्चे से 1 रुपया नहीं मांगा। ये एक लड़का, एक मुस्लिम लड़का सबसे पहले सैलरी लेकर 20 रुपया लेकर आकर हमें दे दिया। आंटी फर्स्ट सैलरी मिला 20 रुपया रख लो। मैंने उसका भी पर्ची काट कर देने के लिए बोला। दुनिया में और क्या चाहिए? ये हम सेवा कर रहे हैं, आप लोग सबका सहयोग से इन बच्चों के लिए एजुकेशन दे रहे हैं। और हमारे पास टीचर्स भी ब्लाइंड है, ऑल एजुकेटेड है। गवर्नमेंट ने और RCA रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए ट्रेनिंग रखा है, 2 साल का कोर्स है। और हमारा सेंटर के लिए उन्होंने परमिशन दिया वो कोर्स कंडक्ट करने के लिए। वो टीचर्स आ जाती हैं, 6 मंथ्स का एक दफ़ा 15 डेज़ का कोर्स है। वो कंडीशन है स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए। लेकिन कुछ टीचर्स 6 महीने में क्या कुछ भी सीखा वो भूल जाती है, उनका ब्रेल नहीं आता। बच्चों का ब्रेल सिखाने के लिए ब्लाइंड टीचर्स ज़रूर चाहिए ब्लाइंड स्कूल में। वो भी उनका मैथ्स पढ़ने के लिए अप टू 8th स्टैंडर्ड तक हम मैथ्स और साइंस सिखा रहे हैं। उसके लिए टाइप्स हैं, शायद आप लोगों ने कभी देखा नहीं है, देख सकती हैं। उसमें कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम 8th स्टैंडर्ड तक बच्चों का साइंस और मैथ्स हम सिखा रहे हैं। मैम जो
टीचर्स हैं, जैसे आपने बोला कि काफ़ी बच्चे भी हैं यहाँ पे, तो सब कुछ मैनेज कैसे होता है जी? जो खर्चा होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर चलानी है तो उसके लिए पैसों की भी ज़रूरत होती है। जो टीचर्स हैं उनको सैलरी कैसे दी जाती है, और जो बच्चे हैं उनको अगर कोई इक्विपमेंट्स आप देते हो, जहाँ यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं, तो उनका सारा खर्चा है जो वो कैसे मैनेज होता है? सबसे पहले हम लोग ईसा नगरी में थे, एक डॉक्टर विक्टर सी रैम्बो का थ्रू क्रिस्टोबल ब्लाइंड मिशन वेस्ट जर्मनी, अभी दोनों जर्मनी इकट्ठा हो गए, पहले वेस्ट जर्मनी, उन्होंने डॉक्टर रैम्बो का थ्रू हमें 600 डीएम, 600 डीएम, 1 डीएम इज़ 2 रुपीज़, एक ऐसा 1200 रुपया हमें महीना डॉक्टर रैम्बो का थ्रू हमें मिला। बाकी हम क्या करते थे, A1 साइकिल से साइकिल शीट का ऑर्डर लेकर आकर वो साइकिल शीट बनाकर हम उसमें स्टाम्प लगाकर उनका सप्लाई कर देती है, और डस्टर बना लेती है, यूनिवर्सिटी वाला वो हमें डस्टर ले लेती है। ये सारे मेड बाय द ब्लाइंड पीपल। और एक तो पार्शियली साइटेड का भी रखा, कुछ हैंडीकैप का भी रखा, उसका साथ साथ हमने करा। बाद में क्रिस्टोबल ब्लाइंड मिशन से सार का शायद मालूम है, डॉक्टर ग्रूबर सीएमसी में काम करा, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। उन्होंने सीएमसी से उसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर दिया, क्रिस्टोबल ब्लाइंड मिशन में। उन्होंने आकर एक दिन मेरा हस्बैंड का पास बुलाकर बात कर दिया। डॉक्टर विक्टर सी रैम्बो का 1200 रुपया लेने के लिए हम जाना टाइम, उनका सेक्रेटरी मिस्टर नेल्सन, उसका 50 रुपया हमने देंगे वो चेक काट कर दे देंगे, नहीं तो नहीं देती है। 50 रुपया उन दिनों का मेरे का 5000 का वैल्यू है, लेकिन उसका दे देंगे, हमें चेक मिल जाएगा, नहीं तो नहीं। हमने डॉक्टर रैम्बो का नहीं बताया। वन डॉक्टर ग्रूबर विजिटेड, वो विजिट करना टाइम मैंने डॉक्टर ग्रूबर हमारे से पूछा, मेरे हस्बैंड के पास पूछा, जॉनसन कोई और कोई प्रॉब्लम है, कुछ है? मेरा हस्बैंड ने बोला नहीं, उन्होंने बोलने के लिए मन नहीं है। मैंने बोल दिया डॉक्टर ग्रूबर का, सर आई एम सॉरी, मिस्टर नेल्सन डे एवरी मंथ 50 रुपया ले रहे हैं सर हमारे पास। फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम आपके पास भेजेंगे, आप बैंक में देकर पैसा ले लो। से कर उन्होंने डायरेक्ट हमें भेजने के लिए शुरू कर दिया। उसके बाद वो फर्स्ट क्रिस्टोबल ब्लाइंड मिशन हमें थोड़ा फंड्स भेजा बिल्डिंग के लिए, ये जगह बनाने के लिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 1.5 लाख रुपया हमें मिला। उसी में भी क्रिस्टोबल ब्लाइंड मिशन का रिप्रेजेंटेटिव, उससे साउथ इंडियन, ही वॉज माई हस्बैंड्स क्लास फेलो। लेकिन उसी टाइम उन्होंने आकर इधर लुधियाना में गुलमर्ग होटल का पीछे एक होटल है, उसमें स्टे कर दिया। हमने गवर्नमेंट से लेटर आया नहीं, सैंक्शन लेटर आया नहीं है। मेरा हस्बैंड ने रिक्वेस्ट करा, कितना भी आप लोग सैंक्शन करा, आप वो पैसा रिलीज़ कर दो। उन्होंने पता क्या बोला, पहले गवर्नमेंट का ग्रांट आने दो जॉनसन, बाद में दे देंगे। भगवान हमारा साथ है। नेक्स्ट डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सैंक्शन लेटर आ गए मेरे हस्बैंड के पास। वो लेकर शाम को रिक्शा में, गाड़ी नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास, ऑटो भी नहीं है उन दिनों में, रिक्शा में जाकर वो लेटर दिखाने के बाद उन्होंने उधर से सैंक्शन करा। ये दुनिया मैंने देख लिया, सारे लोगों का देखा, सब कुछ भगवान उनका दे दिया, लेकिन कुछ लोगों का ना दिल में कुछ भी नहीं है किसी का दान करने के लिए। मैम आपकी अगर बात करूँ, जैसे एक्ट ह्यूमन की तरफ से आपको काफ़ी साथ मिल रहा है, अभी स्टार्टिंग हुई है, जैसे इससे पहले किसी और एनजीओ ने आपको ऐसे साथ दिया है, सपोर्ट की है आपकी? ये एक हैप्पी फाउंडेशन है, वो हर साल हमें 5 लाख रुपया हमें दे देती है। वो उसी पैसा से ना बच्चों का खाना दे सकती हैं, ना वो पैसा लेकर किसी स्टाफ का सैलरी दे सकती हैं, वो सिर्फ रिपेयर मेंटेनेंस के लिए। कभी दरवाज़ा ख़राब हो जाती है, कभी पानी पीने के लिए वो ख़राब हो जाती है बच्चों के लिए, वो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए वो हेल्प कर रहे हैं।
मैम खुशी होती है जब जैसे अभी एक्टिव ह्यूमन एनजीओ की तरफ से आपको सपोर्ट की गई है, तब खुशी होती है जब एनजीओस आगे आते हैं, उनकी तरफ से सपोर्ट की जाती है। हम लोग बहुत खुश हैं। और एक मिसेस रजनी बख्तर का नाम इसमें मैंने बोलना मांगती है। वो रजनी बख्तर आप लोग शायद जानती हैं। वो लक्ष्मी लेडीज़ क्लब जी हमें हेल्प करा 150 रुपया पर मंथ एक ब्लाइंड लड़की के लिए पढ़ने के लिए, उसका पढ़ाई करने के लिए, बुक्सें लेकर देने के लिए, उसका कपड़ा वगैरह लेकर देने, काफ़ी साल हमें लक्ष्मी लेडीज़ क्लब हमें हेल्प कर। मैम लास्ट में क्या मैसेज देंगे आप, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो सपोर्ट करना चाहते होंगे, आपके साथ आना चाहते होंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? मैसेज हैं, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आप लोग का सहयोग हमें चाहिए, नहीं तो हम ये संस्था बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। लोग चाहती हैं ये कब निकलेंगे, ये स्कूल में हमें मॉल बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये बनाएंगे, लेकिन मैं छोड़ने वाली नहीं है। मैं चाहती हूँ कब तक मैं ज़िंदा हूँ ये स्कूल अच्छे रहेंगे। और कोई भी बच्चे आ जाएंगे, मैं कभी मना नहीं करते हैं बच्चों का। बस पेरेंट्स से हमें कुछ नहीं ले रहे, नो फीस, सिंगल रुपी हम नहीं लेते। इनका बुक्स, यूनिफॉर्म, सारे लुधियाना में इतना भी अच्छा लोग हैं वो हेल्प कर रहे हैं हमें। उनका हेल्प नहीं है हम ये संस्था नहीं चला सकती। धन्यवाद। भगवान उन सबका फैमिली का, उनका सबका आशीर्वाद दे देंगे। हम ये प्रार्थना करते हैं उन परिवार के लिए। मैं और कुछ नहीं दे सकती हूँ, भगवान से ये मेरा प्रार्थना, उनका और उनका बिजनेस सब अच्छा होकर हमें और हेल्प करने के लिए लोगों को भगवान हेल्प करेंगे। धन्यवाद। Few words about Act Human, please, if you say those.